ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. اپڈیٹ کریں آپ کو کہ پرتھ ٹیسٹ میں پاکستان پر شکست کے بادل منڈانے لگے. دوسری اننگز کی ابتدا میں ہی پاکستانی ٹیم کی 4 وکٹیں گر گئیں. عبداللہ شفیق 0، شان مسعود 2، امام الحق 10 اور بابر اعظم نے 14 رنز بنائے. آسٹریلیا نے 450 رنز کا ہدف دیا ہے. 233 رنز پر اننگز ڈکلیئر کی. عثمان خواجہ 90 اور مارش نے 63 رنز بنائے. خرم شہزاد 3 اور عامر جمال نے 1 وکٹ حاصل کی. پاکستانی ٹیم کی دوسری اننگز میں بیٹنگ جاری ہے. لاہور میں مصنوعی بارش کے بعد ایئر کوالٹی انڈیکس میں واضح کمی آ گئی ہے. لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر سے 6 نمبر پر آ گیا ہے. انسداد اسموگ کے لیے ملکی تاریخ میں پہلی بار لاہور میں مصنوعی بارش برسائی گئی ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ منصوبہ کامیاب رہا. شہر کے 10 علاقوں میں بارش برسائی گئی. گزشتہ روز غیر ملکی تعاون سے لاہور کے مختلف علاقوں میں مصنوعی بارش کا کامیاب تجربہ کیا گیا، جس کا مقصد شہر کی فضا میں موجود اسموگ میں کمی لانا تھا. الیکشن کمیشن نے اپیلیٹ ٹریبیونلز لگانے کے لیے عدلیہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا. الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے 4 صوبائی الیکشن کمشنرز کو ہنگامی مراسلے لکھ دیے ہیں. مراسلے میں صوبائی الیکشن کمشنرز کو ہنگامی بنیادوں پر تمام ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی گئی. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے اپیلیٹ ٹریبیونل ہائی کورٹس کے ججز پر مشتمل ہوں گے. ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کو اپیلیٹ ٹریبیونلز میں چیلنج کیا جا سکے گا. الیکشن کمیشن کی جانب سے نگراں وزراء کے کیس میں وزیر اعظم کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا. چیمہ اور فواد حسن کو عہدوں سے ہٹانے کے کیس پر سماعت 19 دسمبر کو ہوگی. وزیر اعظم کو نوٹس ایڈوکیٹ عزیز الدین کے کیس میں دیا گیا. الیکشن کمیشن کی جانب سے نگراں وزراء کے کیس میں وزیر اعظم کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. احد چیمہ اور فواد حسن کو عہدوں سے ہٹانے کے کیس پر سماعت 19 دسمبر کو ہوگی. پیپلز پارٹی نے بینظیر بھٹو کی برسی پر 27 دسمبر سے الیکشن مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا. پیپلز پارٹی کے ہائیبریڈ اجلاس کے بعد شہری رحمان نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 4 صوبوں میں خود انتخابی مہم چلائیں گے. بلاول بھٹو زرداری پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں. اس کا صحرا اس الیکشن کا چیف جسٹس کا وہ تو ضرور فیصلہ ہے اور وہ بھی ستائش کے مستحق ہیں، لیکن چیئرمین بلاول کی ہی کارکردگی اور اصولی موقف کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا بالکل ایک ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہوا ہے. آئی پی پی کے سیاسی محاذ پر بڑی کامیابی. سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان نے تحریک انصاف کو چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اور ساتھ ہی 9 مئی کے واقعے کی مذمت بھی کر دی. لاہور سے دیکھیے فیصل ابراہیم کی رپورٹ. مسلم لیگ نون، کاف لیگ اور اب تحریک انصاف کو خیر بات کہہ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت پر سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان کو آئی پی پی نے سینئر نائب صدر کا عہدہ دے دیا. صدر آئی پی پی جہانگیر ترین نے کہا کہ سیاست میں پارٹیوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہتی ہے. نون لیگ کی دعوت پر ہی ان کے پاس گیا تھا. ہمارا مشن صرف ملک کو بحران سے نکالنا ہے. اصل بات یہ ملک ہے، اصل بات اس ملک کی معیشت ہے. معیشت چلے گی تو ملک ترقی کرے گا، ملک میں عوام کی بہتری ہوگی. سب سے اہم چیز ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے ٹھوک بجا کے فیصلہ کیا. 8 تاریخ کو الیکشن ہو رہی ہے، شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے اور ضروری ہے کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہو اور ایک حکومت آ کے 5 سال کے لیے بیٹھے تسلی سے، تاکہ ملک کے استحکام کے لیے، ترقی کے لیے کام کیا جائے. سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان نے 9 مئی کو سانحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. ہندوستان نے وہی پالیسی اپنائی جو ہماری تھی، لیکن افسوس ہم اس سے بھی 2 قدم پیچھے چل رہے ہیں. ہندوستان جو آج سے 30 سال پہلے ہم سے پیچھے ہوتا تھا اور وہی پالیسیز انہوں نے اپنائی جو ہم نے اپنائی، اور ہم 2 قدم آگے 3 پیچھے چلتے رہے اور وہ آگے چلتے رہے. یہ ممکن بالکل ہے کہ اپنے ملک کو ہم اس غربت کی زنجیروں توڑیں اور اس کو باہر نکالیں. استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ کسی قسم کا اتحاد نہیں ہوا، البتہ مذاکرات جاری ہیں. کیمرامین فرحان شیخ کے ساتھ فیصل ابراہیم، لاہور. اب تک پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے چیئرمین پرویز خٹک نے کہا ہے کہ کل سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا. سمجھ نہیں آتی کہ آخر پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے. پی ٹی آئی نے جو کیس کیا تھا وہ غلط تھا. ہماری نئی پارٹی ہے، اس لیے وقت مانگا تھا. نئی پارٹی ہونے کے باوجود بھی انتخابات کے لیے تیار ہیں. کل جو فیصلہ ہوا یقیناً قانون کے مطابق صحیح فیصلہ تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق 8
हर रोज़ वही चूज़ करते थे। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कि हम अपने जजेस नहीं दे सकते, तो ये एक ऐसे फसाना बना दिया। उससे शुक्र है कि कल कोर्ट्स बैठी और रातों रात फैसला हो गया, नहीं तो इलेक्शन दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये जो केस इन्होंने किया गलत किया, और गैर कानूनी जो अब उनके वकील को आपको पता है नोटिस मिल चुका है, जज ने भी गलत फैसला किया। कल रात मैं सुन रहा था, मैं हैरान है ये कैसा मुल्क है कि एक ही एप्लीकेशन आई और एक ही एप्लीकेशन पर एक दिन में फैसला हो गया, और ना उसने और फैसला फिर हमारा फैसला हाई कोर्ट लाहौर कैसे कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कराची बंदरगाह पर खड़ी ग्रीन बसों को एक बार फिर सड़कों पर लाने का मुतालबा किया है। सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि ये बसें कराची की आवाम की सहूलत के लिए खरीदी गई हैं। बदकिस्मती से ये बसें अभी तक बंदरगाह पर खड़ी हैं। इन बसों की खरीदारी का मकसद आवाम को सस्ती सफरी सहूलत फराहम करना है। शर्जील मेमन ने मुताल्लिका हुक्काम से अपील की है कि इन बसों को जल्द से जल्द सड़कों पर लाया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। सेक्रेटरी जनरल ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया और आलमी अमन के लिए पाक आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को सराहा। मुलाकात में आर्मी चीफ ने UN सेक्रेटरी जनरल से कश्मीर और गजा की सूरत हाल पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने कहा, तनाज़े कश्मीर के कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हाल तक जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। न्यूयॉर्क में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात की है। सेक्रेटरी जनरल ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया और आलमी अमन के लिए पाक आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक मुलाकात में आर्मी चीफ ने UN सेक्रेटरी जनरल से कश्मीर और गजा की सूरत हाल पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने कहा, तनाज़ा कश्मीर के कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हाल तक जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। भारत की तरफ से कश्मीर की खुसूसी हैसियत को तब्दील करना अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। आर्मी चीफ ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि गजा की सूरत हाल पर आलमी बरादरी मुतहर्रिक किरदार अदा करे। आर्मी चीफ ने गजा में मासूम बच्चों की हिलाकत और हालत पर तशवीश का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक और शिकायत दर्ज करवा दी गई है। शिकायत कुनिंदा एडवोकेट शब्बीर राजपूत का कहना है कि एक केस में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ऑब्जर्वेशन से उनकी सलाहियत और काबिलियत के बारे में अवामी तासुर मजरू हुआ है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को जज के ज़ाब्ते पर पूरा न उतरने पर ओहदे से बरतरफ किया जाए। पंजाब में डेंगू वायरस के केसेस में कमी आ गई है। एक रोज में 18 नए मरीज सामने आ गए हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से। पंजाब में डेंगू वायरस जिसके केसेस में कमी आ गई है। एक रोज में 18 नए मरीज सामने आ चुके हैं। रवा साल सूबे में डेंगू के 15,047 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब जहां डेंगू के 18 नए मरीज सामने आए हैं। डेंगू वायरस में कुली तौर पर कमी सामने आई है, केसेस कम हो रहे हैं, जबकि एक रोज में 18 नए मरीज सामने आए हैं। रवा साल सूबे में डेंगू के 15,047 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब जहां डेंगू वायरस के केसेस में कमी रिकॉर्ड की गई है। एक रोज में 18 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि रवा साल सूबे में डेंगू के 15,047 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस वक्त बदलती हुई सूरत हाल डेंगू वायरस जिसने मुख्तलिफ सूबों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा लोगों को, और पंजाब काफ़ी ज़्यादा मुतासर रहा। अब इत्तलात ये हैं कि डेंगू वायरस के केसेस में कमी आ रही है। गजा में निहत्थे फलस्तीनियों पर इसराइल के हमले ना रुक सके। इसराइली अफवाज जबालिया खान यूनुस समेत कई इलाकों पर हमले करके मजीद 35 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली अफवाज के जबालिया कैंप पर बमबारी से 14 फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि कमाल उद्वान अस्पताल में बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर भी बिल्डोजर चढ़ा दिए गए। मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज की फायरिंग से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक जारी इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 19,000 से तजावज़ कर चुकी है, जबकि 50,000 से ज़ायद फलस्तीनी ज़ख्मी हो गए हैं। शहीद और ज़ख्मी होने वालों में निस्फ से ज़ायद तादाद सिर्फ बच्चों और ख़वातीन पर मुश्तमिल है। हमास की जानिब से इसराइली जारियत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। फ़लस्तीन की मज़ाहमत पसंद तंजीम हमास ने 5 रोज़ में 100 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी। मुतादिद से उन्हीं फ़ौजी हलाक हो गए। हमास के जंगजू गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ौज पर रॉकेटों, मार्टर गोलों और स्नाइपर राइफल से हमले कर रहे हैं।
हौसियों ने बहरी जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। बहरा अहमर में इसराइल आने वाले बहरी जहाजों पर यमन के हौसी ग्रुप के हमलों के बाद सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए हैं। डेनमार्क और फ्रांस की शिपिंग कंपनियों ने बहरा अहमर में अपने जहाजों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी है। शिपिंग कंपनियों का कहना है कि बहरा अहमर में सिक्योरिटी सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। बहरा अहमर में सर्विसेज ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेंगी। 7 अक्टूबर से हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग के बाद हौसियों ने हालिया हफ्तों में बहरी जहाज़ों पर अपने हमले तेज़ कर दिए हैं। हौसियों ने इसराइल की जानिब से ड्रोन और मिसाइल भी दागे थे। यमन के हौसी बागियों ने इस वक्त तक हमले जारी रखने का अहद किया जब तक कि इसराइल गजा में अपनी जारियत बंद नहीं कर देता। हौसियों ने बहरी जहाज़ों पर हमले तेज़ कर दिए हैं। बहरा अहमर में इसराइल आने वाले बहरी जहाज़ों पर यमन के हौसी ग्रुप के हमलों के बाद सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए। डेनमार्क और फ्रांस की शिपिंग कंपनियों ने बहरा अहमर में अपने जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी। शिपिंग कंपनियों का कहना है कि बहरा अहमर में सिक्योरिटी सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। निगरान सूबाई वजीर रेवेन्यू यूनुस ढाका का कहना है कि सिंध शफाफ लैंड पॉलिसी न होने के सबब तरक्की नहीं कर सका। कम वक्त में लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना बहुत मुश्किल था मगर अल्लाह ने सुरखरू किया। अगले मरहले में जमीनों की ई रजिस्ट्रेशन का आगाज मरीज से किया जाएगा। जमीनों की नई अलॉटमेंट पॉलिसी काबीना की मंजूरी से अगले माह तक नाफिज हो जाएगी। रेवेन्यू रिकॉर्ड में रद्द बदल में मुलविस अफराद की लिस्ट भी जल्द सामने लाएंगे। तफसीलात कामरान चौहान की रिपोर्ट में जानिए। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान में ई रजिस्ट्रेशन की लॉन्चिंग की तकरीब। उस मौके पर खिताब करते हुए निगरान सूबाई वजीर यूनुस ढाका का कहना था कि ई सर्विसेज एक तारीखी कदम है। डिजिटलाइजेशन से चोर दरवाजे बंद हो जाएंगे जबकि कागजात कोरियर सर्विस के जरिए घरों पर भेजे जाएंगे। किसी को नौकरी के लिए, किसी को अपनी जॉब, उसके लिए एजुकेशन के लिए चाहिए होता है तो उसको भी हमने इसमें शामिल कर लिया। तो ये सारा काम हमने दिया तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा काम था उनके लिए। फिर हमने कहा कि जी जब रेडी हो जाए चीज़ें तो उसके लिए भी दफ्तर नहीं जाना पड़े। तो हमने कहा कि फिर कोरियर सर्विस होनी चाहिए। जब कागज़ बन जाए कोरियर के हवाले करें, आपके घर पहुंचे, किसी को दफ्तर जाने की ज़रूरत ही ना हो। मॉडर्न सिस्टम यही है। निगरान वजीर रेवेन्यू ने बताया कि ज़मीनों की नई अलॉटमेंट पॉलिसी काबीना से मंजूरी के बाद अगले माह से नाफिजुल अमल हो जाएगी। नई पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को पेश नज़र रखा गया है। ज़मीन नीलामी की अलॉटमेंट सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मूजब ही की जाएगी। तो अब अलॉटमेंट पॉलिसी ड्राफ्ट हो चुकी है। मैं आपको एक अच्छी खबर सुना रहा हूँ और उस पॉलिसी को और बहुत अच्छी ज़मीनें हमने आइडेंटिफाई भी की हैं जो कि हम ऑक्शन में लेके जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बोर्ड ऑफ जैसे ही हमें कैबिनेट से उसकी अप्रूवल मिलती है उस अलॉटमेंट पॉलिसी की और ऑक्शन की, इंशाल्लाह अगले महीने में हम ऑक्शन की भी एक मिसाल कायम कर देंगे ताकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ये मिसाल कायम हो जाए कि आइंदा ट्रांसपेरेंटली ऑक्शन के तहत। सूबाई वजीर का कहना था कि एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई है जो 2 नंबर या रिकॉर्ड में हेर फेर करने वालों की भी लिस्ट मुर्तब कर रही है। अगले हफ्ते तक ये रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। तकरीब से सरपरस्त आला मोहसन शेखानी और चेयरमैन आबाद आसिफ समसम ने भी खिताब किया। कैमरामैन ताबिश के साथ कामरान चौहान, कराची। अब तक बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।